everyone, welcome to my channel. I am Aimal Fatma, your instructor. Today I will be presenting on digital pathology and advances in AI assisted diagnostics. Here's the outline of my talk. I will start with an introduction, then compare traditional and digital pathology, highlight the role of AI, discuss challenges, explore future directions, and finally touch on ethical considerations. First of all, what is pathology? Pathology is derived from Greek word pathos and logos. Pathos means disease, logos means study. Basically, pathology is the study of disease. Pathologist is a doctor that tells you what kind of cancer disease you have. How do they do it? They look at tissue slides under microscope, recognize pattern, recognize malignant cells, and tell you what kind of disease you have. So it turns out they don't really have to do it under microscope. They can also do it on computer screens. If these glass slides can get digitized and turned into digital images, they can basically do the same that were doing under the microscope. The whole discipline dealing with making those glass slides digital and later working those digital images is called digital pathology. यहाँ पे एक ट्रेडिशनल पैथोलॉजी हमने लिखा हुआ है ग्लास स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप डिजिटल पैथोलॉजी यूज होल स्लाइड इमेजिंग प्लस सॉफ्टवेयर एनालिसिस to make the digital images. It enables remote sharing, AI assisted interpretation, centralized storage and retrieval. Digital pathology relies on four main components. First of all, whole slide images, which convert slides into high quality digital scans. Second, image analysis software, which can detect and measure features automatically. Third, secure data system. Fourth, archiving and easy access. And finally, AI integration, which adds intelligence and predictive power. Here's the historical background of digital pathology. In 2000, first digital microscope scanner developed. In 2005, pathology labs start using digital imaging. In 2010, telepathology emerges. In 2017, FDA approves digital pathology for diagnosis. In 2019, AI artificial enhances image analysis capabilities. In 2023, digital pathology becomes standard practice worldwide. Here's the flow chart of digital pathology. फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटल है. इट मीन्स हॉस्पिटल में पेशेंट आया है, डॉक्टर ने उसे डायग्नोस किया, उसकी सिम्टम्स देखेंगे तो आपको क्या पता कोई कैंसर हो सकता है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन है आपकी. देन वहाँ से हॉस्पिटल सैंपल डिलीवर हुआ है पैथोलॉजी लैब में. प्रोसेस जो बिगिन हुआ है फ्रॉम डिलीवरी ऑफ टिश्यू सैंपल फ्रॉम द हॉस्पिटल टू पैथोलॉजी लैब. पैथोलॉजी लैब में हमारे पास सैंपल आ चुका है. देन हमने स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है. Second step is slide preparation. Sample is sent to laboratory for slide preparation, where it's proceed and prepared for further analysis. Third step is scanning and storage. Prepared slides हैं, scan होंगी, store होंगी, digital format में हम convert करते हैं use करके scanner और server को. This step is crucial in converting the physical slides into digital images that can be analyzed and shared. Fourth step is staining consultation. The digital images are then made available for staining consultation, which involves reviewing the image to determine if additional staining is required. अगर तो हमारी जो इमेज है वो हाई क्वालिटी फॉर्म में आ चुकी है देन इट्स गुड. अगर नहीं आई, हमें लग रहा है कि उसमें कुछ पार्ट्स मिसिंग है या उसको एनालाइज करना मुश्किल हो रहा है, देन हम लोग दोबारा से स्टेनिंग स्कैनर का और सर्वर का प्रोसेस करेंगे, दोबारा से थर्ड प्रोसेस पे जाएंगे ताकि जो हमारी इमेज है वो क्लियर फॉर्म में आ सके. फिफ्थ प्रोसेस है हमारा आर्काइविंग. डिजिटल इमेजेस आर आर्काइव्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड additional tests may be conducted as needed.
कंसल्टेशन हमारा 6 स्टेप है। डिजिटल इमेजेस आर देन रिव्यूड by pathologists who consult with other experts as needed to arrive at a diagnosis. For example, सैंपल आया, एनालाइज कर लिया डॉक्टर ने, लेकिन मे बी उससे डाउट हो कि वो गलत एनालाइज कर रहा है या फिर ये मसला है तो उसके साथ ये भी मसला हो सकता है। अब उसे सही समझ नहीं आ रहा कि ये मसला है या वो मसला है, तो वो करेगा कि वो किसी और एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट के पास सैंपल को भेज देगा, पिक भेज देगा, ताकि वो एनालाइज करे और बता सके कि वो वही मसला है या कोई और है, तो देन वो ट्रीटमेंट शुरू कर सके। 7th स्टेप इज़ डायग्नोस्टिक एंड कंक्लूजन। ये हमारा फाइनल स्टेप है, विच मेक्स a diagnosis based on the analysis of digital images and other relevant information. Diagnosis is then communicated with the relevant parties. डायग्नोसिस हो चुकी है, देन वहाँ रिपोर्ट्स आएंगी डॉक्टर के पास, डॉक्टर आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे जो लास्ट में आपको नज़र आया होम वर्क प्ले स्पेस और हॉस्पिटल वर्क स्पेस, इस पर आप लोग हो रहे होंगे। तो अगर होम वर्क स्पेस से हम लोग देखें तो डिजिटल फॉर्म है, ये डिजिटलाइज का ज़माना है, तो हम लोग पिक को एक्सपर्ट्स को सेंड कर देंगे। अगर तो वो लैब में प्रेजेंट है, हॉस्पिटल में प्रेजेंट है, वो वहाँ पे उसको डायग्नोस कर लेगा, क्योंकि पिक से उसे देखना है, उसकी स्लाइड से नहीं देखना। पिक से वो उसे जूम करेगा, जैसे भी देखेगा वो हमें बता देगा। अगर तो वो होम में घर में प्रेजेंट है, देन वो वहाँ पे भी काम करके पिक को देखे हमें उसी टाइम बता देगा। ये हमारे काम को फास्टली बनाता है। Here is the comparison between traditional pathology and digital pathology. Aspect first, assess on-site only, remote shading possible, analysis manual and time consuming, automated with AI, storage, physical slides, risk of damage, secure data archives, collaboration, limited, easy global sharing, scalability, restricted, high scalable. Here's the diagram. अगर हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम्स देखें तो ये बेसिक हमें जो डिफरेंस यहीं पे समझ आ रहा है। टिश्यू प्रिपरेशन दोनों में फिजिकल हो चुका है, फिजिकल काम है ये। देन है सैंपल आया, अगर ट्रेडिशनल पैथोलॉजी में हम देखें और टिश्यू प्रिपरेशन में देखें, डिजिटल पैथोलॉजी में अगर हम लोग देख रहे हैं, सैंपल आया, टिश्यू प्रिपेयर हमने कर लिया, स्लाइड्स प्रिपेयर हो चुकी हैं। अब जाके पैथोलॉजिस्ट ने उसे अंडर माइक्रोस्कोप देखा है, उसके लगा ये मसला है इस पेशेंट में, तो किसी और की भी तो राय ली जा सके, एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट को दिखाया जा सके, देन वो ऐसा करेगा, उसी अपनी ग्लास स्लाइड को पैक करेगा, कोरियर के ज़रिए भेज देगा किसी और एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट के पास। मे बी वो आउट ऑफ सिटी हो, आउट ऑफ रेंज हो, तो देन उसको पहुंचने में घंटे लग गए, दिन लग गए, काफ़ी वीक लग गए, और इस टाइम पीरियड में जो पेशेंट है वो इतना टाइम अपने ही रिपोर्ट के आने का ही वेट कर रहा है कि मुझे मसला असल में क्या है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। देन वहाँ पे उस पैथोलॉजिस्ट के पास स्लाइड्स पहुँच गई, उसने एनालाइज़ किया, देन उसने बताया कि ये इसको मसला है, रिपोर्ट्स बनाई, उसने वापस भेजी, इसको वापस आने में भी इतना टाइम पीरियड लग रहा है। तो उसी टाइम हम कंपैरिजन डिजिटल पैथोलॉजी देखें, टिश्यू प्रिपरेशन हुई है, क्रिएशन ऑफ डिजिटल स्लाइड्स अंडर विद द हेल्प ऑफ होल स्लाइड इमेजिंग, देन कंप्यूटराइज एनालिसिस हुआ डिजिटल इमेजेस का, देन ऑटोमेटेड पेशेंट डायग्नोस हो गया है। एक तो हमें कंप्यूटर ने बता दिया कि ये उसका सस्पिशियस एरिया है, इस पे चेंजिंग आई हुई है, मे बी उसको सेल्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं या उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर का इशू बन रहा है। एक तो हमें उस पिक से ही अंदाज़ा हो गया, दूसरा हमने अपनी राय दी, ये 2 राय होगी। थर्ड, अगर हमने किसी एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट के पास भेजनी भी है, हम डायरेक्ट उसको सेंड कर देंगे, सेंड की हमने, उसने उसी टाइम देखा है और अवेलेबल है, उसने उस टाइम देख के हमें बता दिया। ये जो काम ट्रेडिशनल पैथोलॉजी में इतने महीनों घंटों में इतने वीक्स में जा रहा था, वो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल पैथोलॉजी हम अब कुछ ही आवर्स में कर सकते हैं। रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिजिटल पैथोलॉजी। अगर रोल ऑफ एआई देखें तो यहाँ पे मैंने 2 कंपोनेंट्स में इसको रोल ऑफ एआई को डिवाइड किया हुआ है। रोल ऑफ एआई इन ऑटोमेटेड इमेज एनालिसिस, रोल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिफिकेशन इन इमेज। क्वांटिफिकेशन वर्डिंग में भी बता रहे हैं, किसी चीज़ को क्वांटिटी हमने मेजर करनी है। इमेज है, उसके अंदर वो इतनी क्लियर है, हाई रेजोल्यूशन इमेज है कि उसमें हम हर पार्ट को, हर चीज़ को काउंट कर सकते हैं।
अगर न्यूक्लियाई वो जितने भी छोटे हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। पहले ये था कि हमें मैनुअली काम दिया जाता था, हम बैठ के स्लाइड्स बनाते थे और हर स्लाइड्स को लैब के माइक्रोस्कोप नीचे देख रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर था। अब उसी प्लेट्स को हम लोग न्यूक्लियाई को जल्दी काउंट कर सकते हैं, पिक्स से देख के हमने काउंट करना होगा, इसलिए हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें टास्क के दे काई 67 पॉजिटिव को आप काउंट करें तो हम विद इन मिनट्स उसको काउंट कर सकते हैं। और दूसरा से इसके ज़रिए हम लोग उस एरिया को भी मेजर कर सकते हैं जिससे हमें लग रहा है कि इतने एरिया पे कैंसर के हमें सिम्टम्स हैं या इस सस्पिशियस एरिया, हम उस एरिया को भी मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इमेज AI। कंप्यूटर एडेड डायग्नोस्टिक्स, कंप्यूटर एडेड डायग्नोस्टिक्स में हमारे पास आ जाएगा MRI, CT स्कैन, उस तरह के टूल्स के उनके ज़रिए भी हम किसी भी डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है प्रिडिक्टिंग मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यूज़ फ्रॉम इमेज। बेसिकली मॉडल्स बने होते हैं, क्रिएट करते हैं जो हमारे इमेज डाटा को कंपेयर करते हैं विद द मॉलिक्यूलर डाटा। ठीक है, बेसिकली ये प्रोसीजर कब यूज़ हुआ था, क्यों यूज़ हुआ प्रिडिक्टिंग मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़। एक केस रिपोर्ट थी जो डॉक्टर बार्लिस वेस्ग्रीन ने इसराइल में दी थी अबाउट द यूज़ ऑफ AI मॉलिक्यूलर एनालिसिस टू असिस्ट rapid treatment in lung cancer. And what happened here? Our image analysis model was used to predict an EGFR mutation in the lung cancer. Instead of sending sample for next generation sequence, a rapid PCR for confirmation could be done for treatment. मतलब कि हमने नेक्स्ट जनरेशन में वो बीमारी जा रही है, वो म्यूटेशन काज की वजह से जा रही है, तो क्यों ना हम उसी जनरेशन में रैपिड PCR देख लें कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, क्यों जा रही है, रीज़न क्या है बिहाइंड, जिसके हर चीज़ को उसी जनरेशन में एनालाइज कर लें ताकि सीक्वेंसिंग के साथ नेक्स्ट जनरेशन में वो कम से कम मूव हो। देन हमारे पास विचुअल स्टेन्स। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, वी कैन डू विचुअल स्टेन्स ऑफ स्पेशल स्टेन्स। सेकेंड है रोल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच टू टेक्स्ट। स्पीच टू टेक्स्ट ये हमें जो पॉइंट है यही वाजे कर रहा है कि हमने स्पीच से टेक्स्ट के फॉर्मेट से कन्वर्ट करना है। अगर हम बहुत से टूल देखें ChatGPT, जेमिनाई, तो ये क्या करते हैं कि हम इसका माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, हम जो बात बोलते हैं वो उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो AI का यूज़ करके अपनी सारी बात को जो उन्हें रिपोर्ट फॉर्म में खुद लिखनी टाइप करनी थी, इतना टाइम कंज्यूम होना था, वो बोलते हैं और AI का मदद से वो सारा टेक्स्ट फॉर्म में आया था। जो काम उन्होंने इतने टाइम में टाइप करके देना था वो अब इसलिए मिनटों में काम हो रहा है। क्रिएटिंग स्ट्रक्चर रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन द वर्कल पैथोलॉजी description of case, so AI can actually populate template of structure reporting based on what the pathologist is detecting while reviewing the case. Smart search, स्मार्ट सर्च नाम ही हमें बता रहा है, जल्दी सर्च करेंगे, कोई भी डाटा हमने डाला है मिनटों में हमारे पास उसका बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिपोर्ट ही हमारे देह में नहीं कि उसके नॉर्मल रेंजरिंग क्या है, हम लोग उस पर विद द हेल्प ऑफ AI डालेंगे, हमारे पास फुली रिपोर्ट्स आ जाएगी, फुली उसकी रेंजिंग आ जाएगी, कितनी रेंज से कितनी रेंज के दरमियान में, और अगर इससे कम है तो इतनी डेफिशिएंसी और उसको ये बीमारी हो सकती है, उससे ज़्यादा है तो ये उसको बीमारी हो सकती है। फिफ्थ हमारे पास रैग ट्राइबल एगमेंटेड रिजनरेशन। इसमें क्या है कि हमारा जो डाटा है पहले से पड़ा हुआ है, एक बार आया है तो ये डाटा उसने AI ने अपने पास स्टोर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, हमने उसकी रिपोर्ट्स देखी, अब हम उसकी हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं तो वो डाटा हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, हम उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, हम उसकी हिस्ट्री को निकालेंगे, उससे मेल करेंगे कि कुछ महीने पहले इसकी ये रिपोर्ट्स अब ये आई है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जल्दी उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। It's a complete description how AI helps in digital pathology. Challenges and limitations. For example, financial cost. अगर हम लोग देखें जिसमें इतना सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, मशीनरी यूज़ हो रही है, मशीन्स आ रही है, इक्वाइपमेंट्स आ रहे हैं, तो इनको जो फाइनली सबसे पहले खरीदने का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है, तो इन नॉर्मल स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं वो नहीं इनको बेयर कर सकते, तो इसलिए फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत बड़ा लिमिटेशन है।
टेक्निकल इश्यूज बाज़ काम हो रहा है, टेक्निकल इशू आ जाते हैं। अगर हम लोग हॉस्पिटल्स में काम करेंगे, पैथोलॉजी में लैब्स में देखिए, तो कभी कभी हमें रिपोर्ट्स लेट मिल रही होती है। क्यों मिल रही होती है? कि मशीन का इशू आ गया है, जो सर्किट है वो शॉर्ट हो चुका है, तो इस तरह के इशू हो सकते हैं। थर्ड है वर्क फोर्स अडेप्टेशन। वर्क फोर्स अडेप्टेशन बेसिकली जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी उनको ट्रेन किया जाए कि आपने इस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे काम करना है। और कुछ पैथोलॉजिस्ट वो इस टेक्नोलॉजी न्यू चीज़ को रेजिस्ट भी करते हैं, क्योंकि हम ये इंसानों की हैबिट है, काफ़ी अर्से से वो किस चीज़ के साथ जुड़ जाए, उसके साथ से वो उसी के साथ कहते हैं कि हम लोग यहीं पे कंफर्टेबल है, तो हम यहीं पे काम करेंगे। नई चीज़ आएंगी, फिर हम वो नई चीज़ को सीखेंगे, तो उनके लिए वो मुश्किल आ रही होती है। जब तक उनके अच्छे से वो ट्रेन नहीं हो सकते, तब तक हमें चैलेंजेस आते रहेंगे। इमेज क्वालिटी की है कि बात हम लोगों को सर्च इंजन को यूज़ कर रहे होते हैं, बट हम लोग फिर भी हमारी जो इमेज होती है वो क्लियर नहीं होती। एआई कॉन्स्टेंट्स का मतलब है कि जो एआई है वो हम लोग ये नहीं बोल सकते वो 100% प्योर रिजल्ट ही देगा, 100% उसका राइट रिजल्ट ही होता है। मे बी वो हमें गलत रिजल्ट दे रहा, मे बी उसने जो हमें रिज़ल्ट दिया है उसमें कोई चेंजिंग हो और हमने उसको विदाउट देखे कि हमने बस ये भी यकीन कर लिया, रिपोर्ट भेज दी, तो ये भी नुकसान हो सकता है। लास्टली हमारे पास है प्राइवेसी एंड रेगुलेशंस। प्राइवेसी एंड रेगुलेशंस में देखेंगे कि जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका डाटा प्राइवेट रहे। क्या पता कभी डाटा हैकिंग का काम हो जाए, तो डाटा हमारा हैक हो जाए, वो इतने पेशेंट का डाटा हैक हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। फ्यूचर डायरेक्शंस हम लोग फ्यूचर यूज़ करें, हमें अभी लिमिटेशन पड़ी थी। फर्स्ट हमने कि लिमिटेशन में पढ़ा था कि इमेज क्वालिटी ठीक नहीं कभी कभी आती, तो हम नेक्स्ट जनरेशन में विद स्लाइड इमेजिंग ऐसे बनाएं जो हमें हाई रेजोल्यूशन इमेज दे, फास्टर स्कैन करे। सेकंड, एआई पावर एनालिसिस फॉर मल्टी टाइप डिजीज डिटेक्शन, एक्यूरेसी बूस्ट। थर्ड, टीम वर्क, पैथोलॉजीज प्लस एआई एज पार्टनर। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग सारा कुछ एआई पे डिपेंड कर दें तो ये भी काम ठीक नहीं है, क्योंकि इंसानों का दिमाग अल्लाह ने बहुत वसी बनाया है। जब इंसानों ने ही तो एआई को जनरेट किया है, तो अब क्या हम सब लोग एआई पे ही छोड़ दें हर काम को? ये इंसान की ज़िंदगी का मामला है, इसलिए हम एआई पे नहीं छोड़ सकते। एआई हमें एज अ सपोर्टिव टूल काम करता है, हमें बताता है कि ये सस्पिशियस एरिया, आप इसको डिटेक्ट करो। हम उसको एज अ सस्पिशियस एरिया ले लेंगे, लेने के बाद हम लोग पैथोलॉजिस्ट खुद देखेंगे कहाँ पे इशू है, क्यों इशू आया, किसकी वजह से इशू आया। देन LLMS in pathology, it helps in draft reports and assist research. Telepathology expansion, rural and cross-border use. Multi-omics integrations, omics, genomics हो गए, प्रोटियोमिक्स हो गए, ये कंबाइंड डाटा करता है। जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी, एक डाटा है वो हमारे पास जस्ट एक चीज़ का था, अब हमने इतनी चीज़ों को कंबाइन कर लिया। जितना ज़्यादा वसी नॉलेज होगा उतनी ज़्यादा हम अच्छे से डायग्नोस कर सकेंगे। प्लस इमेजिंग फॉर प्रिसिजन मेडिसिन्स। Here is the ethical considerations in AI adaptation. Firstly, patient privacy. It means प्रोटेक्ट करना पेशेंट की प्राइवेसी को, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। सेकेंड इज डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी ये है कि प्रिवेंट करना फ्रॉम साइबर अटैक्स एंड हैकिंग ये है कि सम टाइम डाटा हैक हो जाता है। एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत सा वसी काम हो रहा है, तो उसका कंपटीटर चाहेगा कि उसका डाटा हैक कर ले ताकि वो उनसे आगे जा सकते हैं। अगर वो आगे जा रहे हैं तो किस बेस पे जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग हाई टूल्स यूज़ करें, डाटा सिक्योरिटी हाई यूज़ करें ताकि हमारे मरीजों को सिक्योरिटी मेंटेन हो सके। मिटिगेटिंग एआई बायस फॉर फेयरनेस। एआई समटाइम बायस हो जाता है सब चीज़ों के लिए। अगर हम लोग देखें फेस रिकॉग्नाइजेशन, कुछ ऐप्स होती हैं जो कुछ फेस टोन को ही रिकॉग्नाइज करती हैं, उसको डिटेक्ट करती हैं, कुछ को नहीं करती, तो एआई समटाइम हमें फेयर रिजल्ट नहीं दे रहा था। इसलिए हम लोग इसका जो इम्पेक्ट होता है उसको लेस करने के लिए भी ज़रूरत होती है हमें। मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी बेसिकली वर्ड्स या हाउ द एआई मेक डिसीजन। अगर एआई ने बताया कि ये सस्पिशियस एरिया तो क्यों एरिया है, अब ये हम लोगों के लिए भी, पैथोलॉजिस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट और पेशेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये जानना कि हाउ
AI मेक डिसीजंस। तो बिफोर रिजल्ट रिपोर्ट्स देने से हम लोग को चाहिए कि हम लोग चेक कर लें कि AI ने रिकमेंड की है ये एरिया सस्पिशियस तो क्यों किया है, इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, किस टिश्यू में इशू आया है। देन ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी इन AI ड्राइवन डिसीजंस। AI ने डिसीजन दे दिया है, लास्ट लेयर डिसीजन हमेशा ह्यूमन का हो जाए, हमेशा पैथोलॉजिस्ट का हो। पैथोलॉजिस्ट ने उसे एज आ सपोर्टिव टूल तो काम लिया है, बट उस पर ही डिपेंड नहीं कर दिया, बल्कि अपना एक थीम दिया, अपना एक आंसर दिया कि उसने ये मुझे बताया, देन मैंने ये स्टडी किया, इस टिश्यू में ये चेंजिंग आई है और इंसान में इस वजह से कैंसर हो रहा है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, हाउ कि डिजिटल पैथोलॉजी की हमने इतनी बात की है, तो हम लोग अगर पाकिस्तान में देखें तो कहाँ पर डिजिटल पैथोलॉजी यूज़ हो रही है और कैसे यूज़ हो रही है, और डिजिटल पैथोलॉजी अब तक कैसे किस डिजीज़ के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है। तो मेनली डिजिटल पैथोलॉजी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में यूज़ हो रही है, और ये बेस्ट वे है कि डिजिटल पैथोलॉजी ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर लेती है और अर्ली स्टेजेस में ही उसको डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया जाता है। और दूसरी बात कि पाकिस्तान में पाकिस्तान में बिग से हॉस्पिटल्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में डिजिटल पैथोलॉजी यूज़ हो रही है। कराची में मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं कि वो भी डिजिटल पैथोलॉजी को नेक्स्ट लेके आए। और यहाँ पे अगर हम देखें भी स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं, उनके पास इतना नहीं है, लेकिन वो भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है, आई होप यू अंडरस्टैंड टॉपिक। अगर तो आपको कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, हम आपको आंसर करेंगे। अगर तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब, लाइक्स एंड कमेंट्स। थैंक यू।